Hello dear students. So in the last week we have completed third chapter under science 2, that is useful and harmful microbes, and along with that we have also completed third chapter in science 1, that is current electricity. Okay students. So in both the sections, that is science 1 and science 2, we have completed three chapters, means total 6 lessons are over. Soon I'm going to take your unit test. Yes, means on all the 3 chapters there will be your exam. Science 1 का पेपर अलग दिन होगा, Science 2 का पेपर अलग दिन होगा. Okay. Now today we will start with 4th chapter under Science 1. The name is measurement of matter. Means to count, to calculate matter. But to understand the chapter, first of all you should know what is a matter. So what is a matter? Do you know how you will define it? Very simple. What is matter? Anything around us. Anything around us. That means any substance around us. Anything means any substance around us which we can perceive. Through our senses is called matter. What do you mean by we can perceive? We can perceive means we can either see it or touch it or feel it with our senses, means with the help of our sense organs. We can either see that substance or we can touch that substance or we can feel that substance. Let me give you example of matter. Water which you drink. Can you see it as well as touch it? Yes. At present, suppose you are sitting on a chair. The chair, you can see it also, you can touch it also. But suppose now you are sitting under the fan. What about the air which is there around you? Can you see the air? No. Can you touch the air? No. But can you feel it? Yes. When the air touches your skin, you can feel it with your sense organ, that is skin. Are you getting that? So any substance around us which we can perceive, means we can either see it, feel it or touch it, is called as matter. Understood students? The most important point is matter is made up of tiny particles, very small particles called as atoms. Now 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा ही होगा. लेट मी जस्ट रिवाइज इट टू यू इन शॉर्ट. इन एनी एटम, फिर वो किसी भी एलिमेंट का एटम है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, कोई भी हो सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट हो, वो एलिमेंट का जो एटम है उसका सेंटर में होता है न्यूक्लियस. एंड न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं ऑर्बिट्स that we call as shells. We call it as orbit or shells. Right? Students, न्यूक्लियस में कोई भी एटम हो, फिर ये हाइड्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो, नाइट्रोजन का हो, कार्बन का हो, कोई भी एटम हो, न्यूक्लियस में हमेशा 2 पार्टिकल्स होते हैं. पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स विच आर डिनोटेड एज P+, स्मॉल p, उसके ऊपर प्लस चार्ज, एंड न्यूट्रॉन्स. ये न्यूट्रॉन्स जो है इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, क्योंकि ये न्यूट्रल है. न्यूट्रल मींस हैविंग नो चार्ज, दैट इज व्हाई देयर नेम इज न्यूट्रॉन्स. तो न्यूक्लियस में कौन से 2 पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. एंड न्यूक्लियस के अराउंड ये जो ऑर्बिट्स है, शेल्स है, अब ये ना दिखता नहीं, एक इमेजिनरी पाथ है. ओके, जैसे सिंपल वे में बताती हूँ. हमारी जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में सेंटर में होता है सन, एंड सन के अराउंड प्लैनेट्स अपने एक पर्टिकुलर पाथ में घूमते रहते हैं, रिवॉल्व होते हुए. वहां पे उनको, जैसे हम जब रास्ते पे गाड़ी चलाते हैं, हमको रास्ते के मार्किंग दी होती है, इसलिए हम उसी पाथ में चले. लेकिन प्लैनेट्स अपना अपना एक पाथ है, उसके ऊपर रिवॉल्व करते रहते. तो वैसे ये भी एक इमेजिनरी पाथ है जिसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, कीप ऑन रिवॉल्विंग. राइट स्टूडेंट्स? तुमने ये भी पढ़ा होगा, जो सबसे पहला शेल है न्यूक्लियस के पास, राइट? न्यूक्लियस के अराउंड जो सबसे पहला शेल है
उसको बोलते हैं के शेल, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज के ऑर्बिट। जो दूसरा है एल शेल, जो तीसरा है एम शेल, जो चौथा है एन शेल। हर एक शेल का एक फिक्स्ड कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखने का। जैसे कि जो के शेल है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, उससे ज्यादा नहीं। एम शेल का कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड एन शेल का कैपेसिटी है 32 इलेक्ट्रॉन्स। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इनमें रिवॉल्व नहीं, इनकी कैपेसिटी, इतने इलेक्ट्रॉन्स उनमें बैठ सकते, फिट सकते, उस पाथ में रिवॉल्व हो सकते। ये कैसे निकला? हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2n²। n मतलब नंबर ऑफ शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। सिंपल, देखो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट के शेल और अ के ऑर्बिट, तो 2 इंटू n मतलब नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल मतलब के शेल कौन सा है न्यूक्लियस के बाद? पहला 1, सो इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, सो 2 इंटू 1 स्क्वायर इज 2। अब मैं डायरेक्टली एम शेल लेती हूँ। जिस 2-3 एग्जाम्पल, ये 8th स्टैंडर्ड में तुमने पढ़ा है, बट स्टिल आई एम रिवाइजिंग इट, क्योंकि अगर तुमको एटम क्या है वही नहीं पता है तो मैटर क्या है वो नहीं समझेगा। ओके, क्योंकि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। ओके, उसका भी एग्जाम्पल देती हूँ क्या, एम शेल। चलो 2 इंटू एम शेल का नंबर क्या है न्यूक्लियस के बाद? देखो 1 2 3, थर्ड है एम शेल, सो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। Is it having a capacity to hold 18 electrons only? Yes. Understood? So, matter is any substance around us which we can perceive. Either we can see it, touch it, or feel it. And this matter is made up of very small particles called as atoms. Let me give you an example. If I am talking about the matter water, बोलो वाटर का फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला इज इट H2O। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स है एंड ऑक्सीजन का 1 एटम। जब ये 3 एटम मिलते हैं तब जाके बनता है वाटर। सो इज अ वाटर लिक्विड मैटर विच वी कैन सी ऑल्सो, वी कैन टच ऑल्सो, राइट? सो कोई भी मैटर हो, इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ एटम्स। एंड द लास्ट पार्ट अबाउट मैटर, द मैटर is either in the solid state or liquid state or in gaseous state। जैसे कि मैंने वाटर बोला, वाटर ये एक मैटर है, ये एक सब्सटेंस है जिसको हम परसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ओके, इवन आंख बंद करके भी किसी ने तुम्हारे बॉडी पे वाटर फेंक दिया, यू कैन फील इट ऑल्सो, राइट? सो वाटर इज द लिक्विड मैटर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द चेयर ऑन विच यू आर सिटिंग, प्लास्टिक का चेयर है, इज इट solid matter? Yes. Now you're breathing air. Air is what? Gaseous matter. समझ में आया? So students, what is matter? Any substance around us which we can perceive. It is made up of small particles called as atoms. And matter is available in 3 states: solid state, liquid state and gaseous state. Understood? तो इस मैटर के बारे में, मतलब मैटर को समझना है तो हमको पहले क्या समझना पड़ेगा? Atom, right? Okay, now let us study the next point. So I hope every one of you have understood what is matter. Now, Dalton's atomic theory. डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने जब एटम स्टडी किया तो उसने एक थ्योरी, उसने कुछ लिखा एटम के बारे में। उसके हिसाब से एटम क्या है, व्हाट इज एन एटम अकॉर्डिंग टू डाल्टन, वो जो उसने लिखा, जो भी उसने स्टडी किया, उसको बोलते हैं एटॉमिक थ्योरी। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन, atom is the smallest indivisible particle of any matter। हमने अभी पढ़ा मैटर में सबसे स्मॉल क्या होता है? एटम।
बट उसने आगे बोला कि ये एटम इनडिविजिबल, मतलब आगे जाकर तुम एटम को ब्रेक करके और कुछ ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज आई एम टेलिंग यू, यू आर हैविंग अ शुगर सोल्यूशन विथ यू। शुगर सोल्यूशन मतलब शुगर का पानी, मीन्स तुम्हारे पास मिक्सचर है, वाटर में तुमने शुगर डिसॉल्व किया है। तो चलो शुगर सोल्यूशन को अगर डिवाइड करना है फर्दर, तो यू विल डिवाइड इट इनटू वाटर एंड शुगर। ये है शुगर का केमिकल फॉर्मूला, ये है वाटर का केमिकल फॉर्मूला। ओके, वापस इसको डिवाइड करो, यू विल गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसको डिवाइड करो, यू विल गेट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलो अब इसको डिवाइड करो, और आगे कुछ मिलेगा नहीं। सो दैट ओनली डाल्टन सेड। तो बोलो ये है तुम्हारा मैटर, शुगर सोल्यूशन, शुगर का पानी, शुगर चीनी का पानी, राइट। शुगर सोल्यूशन तुम्हारे हाथ में, तुमने उसको डिवाइड किया तो शुगर एंड वाटर सेपरेट हो गया, और डिवाइड किया तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऐसे एटम्स सेपरेट हो गए। इसके ज्यादा और तुम उसको डिवाइड कर सकते हो नहीं। यही तो डाल्टन की थ्योरी है ना, कि किसी भी मैटर में सबसे स्मॉलेस्ट कौन होते हैं, उनके एटम्स। बट स्टूडेंट्स अभी ये हम पढ़ रहे हैं 9th स्टैंडर्ड के लेवल से। जब तुम हायर स्टैंडर्ड में जाओगे यू विल अंडरस्टैंड कि एटम से भी छोटा और होता है, यस इससे भी छोटा, इसको भी डिवाइड करके मिलेगा, बट वो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि वो तुमको हायर स्टैंडर्ड में। फिलहाल हमको जितना बताया जा रहा है उतना पढ़ो। क्या है, जब तुम हायर स्टैंडर्ड में जाओगे 11th 12th में या 12th के बाद भी, तब तुमको समझेगा हमने 9th स्टैंडर्ड में जितना भी पढ़ा वो बहुत बेसिक पढ़ा है, मतलब थोड़ा रॉन्ग भी है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम। नहीं, इट्स नॉट एटम, इट्स क्वार्क। अब ठीक है, अभी नहीं समझेगा, हायर स्टैंडर्ड में समझ जाओ, फिलहाल यही याद रखो। ओके, सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सेज दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट indivisible particle of any matter. Okay, now we will study the next point, laws of chemical combination. And I'm guaranteeing you इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। ओके, हमको यहाँ पे 2 लॉज पढ़ने हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। मीन्स जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, अब सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे लिखती हूँ, केमिकल रिएक्शन के कुछ वर्ड्स तुमको पता होने चाहिए, तभी ये लॉ का डेफिनेशन समझिएगा। केमिकल रिएक्शन, राइट। सपोज ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है ये केमिकल कंपाउंड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। It is reacting with another chemical, sodium hydroxide. Sodium hydroxide. Students, तुमने लास्ट ईयर एसिड एंड बेस पढ़ा है, तो ये है एसिड सब्सटेंस और ये है बेस। जब एसिड एंड बेस केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं, मतलब इनके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब एटम्स रिएक्ट होके प्लेस बदल के नए कंपाउंड्स तैयार करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन ये दो जब रिएक्ट करेंगे तो एटॉमिक रीअरेंजमेंट होगा, एटम्स रीअरेंज होंगे। देखो क्या, इट विल गिव यू सॉल्ट दैट इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। इधर कुछ अलग सब्सटेंस है, उनके बीच में रिएक्शन होके दो नए सब्सटेंस प्रोड्यूस हुए, समझे। सो दिस इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, एटम रीअरेंज होते हैं। एटम रीअरेंज मतलब देखो, सोडियम हाइड्रोजन की जगह पे आ गया NaCl, एंड हाइड्रोजन सोडियम की जगह चला गया HOH मतलब H2O, समझे। यही तो है केमिकल रिएक्शन। नाउ केमिकल रिएक्शन में जो दो केमिकल्स के बीच में एटम रीअरेंज होते हैं, मतलब जहां पे जो दो एक्चुअली केमिकल रिएक्शन करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। एंड एटॉमिक रीअरेंजमेंट की वजह से जो नए कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं, ये नए सब्सटेंस तैयार हुए ना, इनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ओके, ये सब तुमने पढ़ा है 7th में 8th में,
बट फिर भी मैं थोड़ा रिवाइज करवा रही हूँ, क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे क्लियर है तो ही ये चैप्टर समझे। अब स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो दो लॉज, दो रूल्स फॉलो किए जाते हैं बाय द केमिकल्स। वो क्या है? पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन होता है मैटर कंजर्व होता है। कंजर्व मतलब सेव या कांस्टेंट होता है। मींस देखो, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड था, इनके बीच में रिएक्शन होके कौन से दो नए कंपाउंड्स बने? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। बट तुम मुझे बताओ, यहाँ पे कोई नया एटम प्रोड्यूस हुआ क्या? इधर भी सोडियम है, इधर भी सोडियम है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, इधर भी क्लोरीन 1 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है। मतलब एटम से फ्री अरेंज हुए, ना कोई नया एटम प्रोड्यूस हुआ, ना जो ऑलरेडी एटम था वो डिस्ट्रॉय हुआ। ऐसे यहाँ पे है क्या कि इधर हाइड्रोजन 2 थे, उधर 1 ही हो गया? नहीं। ऐसे यहाँ पे क्या, इधर सोडियम 2 था, उधर जाके 1 बन गया, या इधर सोडियम 1 ही था, उधर जाके और 1 बढ़ गया? नहीं। मतलब ना तो एटम, ना नए एटम प्रोड्यूस होते हैं, ना जो ऑलरेडी एटम्स है वो डिस्ट्रॉय होते हैं। दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मैटर। मतलब मैटर जितना है उतना ही रहता है। वन मोर, थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ एग्जांपल। सपोज यहाँ पे तुमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2 ग्राम लिया। कितना लिया? 2 ग्राम। यहाँ पे तुमने सोडियम हाइड्रोक्साइड भी 2 ग्राम लिया। टोटल कितना हो गया? 4 ग्राम, राइट? तो सपोज यहाँ पे सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो गया 1.5 ग्राम, ओके, एंड वाटर प्रोड्यूस हुआ 2.5 ग्राम। बोलो 1.5 प्लस 2.5 कितना? 2 प्लस 1 3, 0.5 एंड 4। तो यहाँ पे भी टोटल 4 ग्राम है, यहाँ पे भी टोटल 4 ग्राम है। मतलब जितने रिएक्टेंट का वेट है, जितना वेट, वेट मतलब हियर मास, ओके, जितना रिएक्टेंट का वेट है उतना ही प्रोडक्ट का वेट है। कंजर्व हुआ मतलब मैटर जितना है उतना ही रहा, कांस्टेंट रहा, ना मैटर इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो कैसे बोलोगे ये लॉ? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, सिया लॉ है, जब जो उसका डेफिनेशन होता है वो परफेक्ट ही होना चाहिए। तुम अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते। जैसे मैंने अभी यहाँ पे पढ़ाया, तुम सपोज अपने वर्ड्स में लिखोगे ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन नो न्यू एटम इज क्रिएटेड एंड नो प्रेजेंट एटम इज डिस्ट्रॉयड, ऐसे नहीं। तुमको लॉ जो वो एक साइंटिस्ट ने दिया होता है। किसने दिया? आई विल टेल यू। दिस लॉ ऑफ कांस्टेंट, sorry, the law of conservation of matter was given by the scientist Lavoisier, या इनका फुल नेम है एंटोनी लेवोजियर। इन साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया है सब स्टडी करके। तो साइंटिस्ट का लॉ है, वर्ड टू वर्ड तुम्हारा सेम ही होना चाहिए, तभी फुल मार्क्स मिलते हैं, वरना नहीं। सो व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन the total weight of reactants is always equal to the total weight of the products formed. During a chemical reaction, the total weight of reactants is equal to the total weight of products formed. Okay, means ये हो गया लॉ, या तुम ये लॉ का और एक डेफिनेशन है। According to Anthony Lavoisier, during a chemical reaction there is no rise or no drop in the weight of matter. No rise मतलब there is no increase, no drop मतलब there is no decrease। मतलब मैटर का मास ना तो इंक्रीज होता है ना डिक्रीज, जितना है उतना ही रहता है। देखो रिएक्टेंट भी 4 ग्राम है यहाँ पे, भले इधर इनके इंडिविजुअल मासेस अलग अलग है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2 ग्राम लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी 2 ग्राम लिया, ओके। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड 1.5 ग्राम आया एंड वाटर 2.5 ग्राम। इंडिविजुअल मास अलग अलग है, मतलब उनके अकेले के मास अलग अलग है, लेकिन टोटल मास रिएक्टेंट का एंड टोटल मास प्रोडक्ट का, मास नहीं बोला है, वर्ड यूज करना है वेट, लॉ में जो है वो।
is always equal. So this is called law of conservation of matter. And क्यों मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, क्योंकि यहाँ पे कोई नया एटम प्रोड्यूस नहीं होता और जो ऑलरेडी एटम है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, सिर्फ एटम्स रीअरेंज होते हैं, अपनी जगह बदलते हैं. जैसे यहाँ पे सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है एंड यहाँ पे आके दूसरा हाइड्रोजन OH के साथ अपना बॉन्ड बना लेता है. वही यहाँ पे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है एंड उसकी जगह सोडियम आके क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है. इसी को तो बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स बाय ब्रेकिंग एंड मेकिंग द न्यू बॉन्ड्स. मतलब जो पुराने बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो जाता है और नए बॉन्ड्स तैयार होकर नए प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप you all have understood the first law of chemical combinations, that is law of conservation of matter. Okay, दो स्टेटमेंट बताए मैंने इसके. पहला स्टेटमेंट, पहला डेफिनेशन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन the total weight of reactants is equal to the weight of the products formed. Or second definition, during a chemical reaction there is no rise or drop in the weight of matter, means the matter remains constant during a chemical reaction. समझे? ओके, सो स्टूडेंट्स आज स्टार्टिंग से हमने क्या पढ़ा, वापस एक बार रिवाइज करवाती हूँ. सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज मैटर. ओके, सो एनी सब्सटेंस अराउंड अस which we can perceive is called matter. Matter is made up of tiny particles called as atoms. फिर मैंने आप लोगों को एटम का स्ट्रक्चर भी समझाया. एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में कौन से दो पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. करेक्ट. फिर न्यूक्लियस के अराउंड इमेजिनरी पाथ होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट और शेल. उसमें कौन रिवॉल्व होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. राइट. कैन यू टेल मी न्यूक्लियस के बाद जो सबसे पहला शेल है उसका नाम क्या है? करेक्ट, के शेल. सेकेंड शेल एल, थर्ड एम एंड फोर्थ एन. राइट. हमने पढ़ा कि हर शेल में कैपेसिटी होती है फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने की. मतलब उस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं. उससे कम हो सकते लेकिन उससे ज्यादा नहीं. के शेल का कैपेसिटी हमने पढ़ा 2 इलेक्ट्रॉन्स, L shell 8 electrons, M shell 18 electrons and N shell 32 electrons by the formula 2n square. Right students? फिर इसके बाद मैंने बताया the matter, any substance around us is available in 3 states. Either it is in solid state or in liquid state or in gaseous state. Right? Okay. फिर हमने पढ़ा आज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ये जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ सबके नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी. ओके, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ा हमने, अकॉर्डिंग टू विच मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स एंड द एटम्स आर फर्दर इनडिविजिबल. मतलब एटम सबसे छोटा है, उसके बाद छोटा कुछ नहीं. हम इसको और डिवाइड करके और कुछ छोटा प्रोड्यूस नहीं कर पाते. ओके, डाल्टन एक और चीज बताई, आई फॉरगॉट टू टेल यू. The molecule of the compound is formed of atoms. Means देखो H2 ये एक मॉलिक्यूल है, उसके साथ एक और एटम आके कंबाइन हो गया, ये बन गया कंपाउंड वाटर. अच्छा, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड में डिफरेंस क्या है? मॉलिक्यूल मीन्स यहाँ पे एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर कंबाइंड. मतलब 2 हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना, 2 ऑक्सीजन मिलके ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल बना. समझ में आ रहा है? 3 ऑक्सीजन मिलके एक ओजोन का मॉलिक्यूल बना. लेकिन जब एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के कंबाइन होते हैं, जैसे कि H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का एक, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जब कंबाइन होते हैं देन वी कॉल इट एज अ कंपाउंड. सो मॉलिक्यूल मीन्स 1 or more atoms of the same element combined. Compound means 1 or more atoms of the different elements combined. Okay, so atom, molecule and compound. I hope तीनों वर्ड्स का डिफरेंस समझा होगा. लेट मी गिव यू एग्जांपल. यहाँ पे मैं 2 केमिकल कंपाउंड्स केमिकल्स के नाम लिख रही हूँ. सपोज नाइट्रोजन गैस
I wrote it as N2. And I want to write nitric acid, HNO3. बोलो ये दोनों में से कंपाउंड कौन है? कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा एटम्स लेकिन अलग अलग जब कंबाइन होते हैं, डिफरेंट एटम्स कंबाइन टुगेदर. यहाँ पे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, अलग अलग एटम्स आके कंबाइन हो गए, तो ये हो गया कंपाउंड. व्हाट इज मॉलिक्यूल? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, मतलब सेम ही एटम है कंबाइन हो रहे. नाइट्रोजन के 2 एटम्स यहाँ पे कंबाइन हो गए, तो ये हो गया मॉलिक्यूल. ओके स्टूडेंट्स, राइट. एंड आज के लेक्चर में हमने सबसे लास्ट पढ़ा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. ये स्टार्टिंग का पहले मैंने एक्सप्लेन किया. रिएक्टेंट मतलब जो केमिकल्स एक्चुअली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके बीच में एटम्स रीअरेंज होते हैं. एंड प्रोडक्ट्स मतलब केमिकल रिएक्शन के बाद जो नए सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर, अकॉर्डिंग टू विच ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन there is no rise or no drop in the weight of matter, or the total weight of reactant is always equal to weight of products formed during a chemical reaction. लॉ अच्छे से बाय हार्ट करना है, लर्न करना है. लॉ के वर्ड्स चेंज नहीं होने चाहिए, तुम्हारे अपने लैंग्वेज में लॉ नहीं लिखना है. लॉ एंड डेफिनेशन परफेक्ट जो टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे ही लिखना पड़ता है, तभी फुल मार्क्स मिलते हैं. ओके, सेकेंड लॉ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. Okay students, thank you.